معاشی تباہی اور بدحالی کا ذمہ دار عمران خان، غلط اعداد و شمار پیش کیے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا عمران خان کو مناظرے کا چیلنج، کہا چیئرمین پی ٹی آئی جاتے جاتے لینڈ مائن بچھا کر گئے۔ اتحادی حکومت تبدیلی سرکار کے دور میں ہونے والی خرابیاں دور کر رہی ہے، پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر لے جائیں گے۔ آپ نے اس ملک کے 4 سال خراب کیے ہیں۔ شیشہ دکھاؤں آپ کو کہ آپ کو حکومت کہاں ملی تھی اور آپ نے حکومت کہاں چھوڑی۔ آپ نے قریباً 75% کے قریب قرضوں میں اضافہ کیا اپنے صرف 4 سالہ دور۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرضوں میں اضافہ، اس طرف آپ کا روپے کو کھلا چھوڑنا، مہنگائی آسمان پہ جانا، یہ ساری چیزیں جو اس نے تباہی کر دی ہے پاکستان کی معیشت کی اور عوام کی کمر توڑ دی۔ یہ جو آپ کی بار بار غلط بیانی اور جھوٹ اور اس طرح کی جو آپ کے نمز ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ آپ یا تو لائیو مذاکرہ کر لیں، لے آئیں اپنے سارے نمبر اور ہم بحث کر لیتے ہیں، لیکن عوام کو گمراہ مت کریں۔ رجیم چینج کی بات پتا تھا، معیشت خراب ہو گئی تو پھر سنبھلنا مشکل ہوگا۔ پتا تھا سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معیشت گر جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں شہباز شریف نے آئی ایم ایف میں اپنے بندے بھرتی کیے ہیں، چن چن کر ملکی اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جو معیشت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، قوم چپ نہیں بیٹھے گی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ جو لوگ 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سارا ملک کے مسئلے ان کے دور میں شروع ہوئے، تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے نہیں سنبھالا۔ ان کے 9 مہینے میں 84 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے۔ یہ کیوں گرا ہے؟ یہ کہ وہ قوم کو فیصلہ کرنے دے کون کس کو وہ لانا چاہتے ہیں۔ ایک جمہوری طریقے سے، ایک صاف الیکشن سے وہ قوم الیکٹ کر لے، وہ لوگوں کو جو جس کو بھی وہ لے کے آئے اور وہ اس کو مینڈیٹ دے کہ ہمیں اب اس مشکل وقت سے نکالیں۔ الٹا دوسری طرف نکل گئے ہیں۔ جو اس وقت طاقتور لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خوف آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے رواں ماہی معاہدہ ہو جائے گا۔ ہمیں مشکل حالات میں حکومت ملی، ایک ایک پائی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بورڈ میں فوقیت کے مطابق فہرست بنا لی۔ ترقی کا سفر مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ 4 سالوں میں چین کے ساتھ تعلقات کو ٹھیس پہنچی۔ پاکستان آج اس دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک پرائیورٹی لسٹ بنائی ہے کہ جو امپورٹس جو ہیں اس میں کن کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے، ایکسپورٹرز، فوڈ آئٹمز، ادویات اور اس طرح کی جو ان کے بغیر معاشرہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں مجھے پوری امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے۔ پھر ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل بھی جو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ تحریک انصاف نے ملکی معاشی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دے دیا۔ شوکت ترین بولے پیٹرول سمیت جو چیزیں ان کے پلے پڑے گی یہ اس کی قیمت بڑھائیں گے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال سیاسی انتشار رجیم چینج سے پیدا ہوئی ہے، انہیں اپنی بیرونی آقاؤں کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ظاہر مہنگائی ہوگی اور بہت بڑھ چڑھ کے مہنگائی ہوگی، لیکن جو یہ بھی شور مچاتے تھے کہ 40 مہینوں میں تحریک انصاف نے کوئی تقریباً 19 ارب ٹریلین روپے کا قرضہ بڑھایا ہے، انہوں نے 1-2 دن میں، یہ 2 دنوں میں 4.5 ٹریلین روپے کا قرضہ بڑھا دیا ہے۔ اس خطرناک صورتحال کے اندر اب ہم سے کیا مطالبے کیے جائیں گے کہ پاکستان کو ادھر نکلنا ہے، تو جو ہمیں یہاں سے انہوں نے ان کے اب جو بیرونی آقا ہیں ان کے سامنے انہوں نے جو اپنا سر جھکانا ہے، اس کے لیے پاکستان سے کیا کیا مطالبے کیے جائیں گے۔ یہ مہنگائی تو بڑھنی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ معیشت کے قاتل اور عوام کے مجرم کو گھر سے نکال کر جیل بھیجنے کا وقت آ گیا۔ مجرم نون کی مرکزی ترجمان مریم اورنگزیب نے عمران خان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا عمران خان کو معیشت کی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ خوف آپ کو اپنے جرائم سے آ رہا ہے، خوف اس وقت سے آنا چاہیے تھا جب قومی خزانے پر آپ ڈاکے ڈال رہے تھے۔ روپے کی تاریخی بے قدری، امریکی کرنسی بلند ترین سطح پر، انٹر بینک میں $1 262 کا ہو گیا۔
मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की मर्ज की तशखीस और दवाई के इस्तेमाल के साथ ही इन्फेक्शन। डॉलर रेट पर लगी ई कैप खत्म क्या हुई, पाकिस्तानी रुपए की ही सख्ती आ गई। डॉलर का रुपए को धोबी पटका, अमेरिकी करेंसी की ऊंची उड़ान, रुपया हुआ हल्का। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका। इंटर बैंक में 6 रुपए 67 पैसे इजाफे के एक साथ $1 262 रुपए पर पहुंच गया। 2 रोज में इंटर बैंक में डॉलर 31 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए इजाफे के साथ 265 रुपए में फरोख्त होता रहा। ओपन मार्केट में भी 2 दिनों में डॉलर 24 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। अमेरिकी करेंसी की नॉन स्टॉप ऊंची परवास के बाद सिर्फ 2 रोज में कर्जों के बोझ में 3,950 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF की हिदायत पर हुकूमत की जानिब से डॉलर की कैपिंग खत्म होने से डॉलर की कीमत मुसलसल आउट ऑफ कंट्रोल है। सोने की कीमत में 7,000 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा, फी तोला कीमत 2,02,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 6,000 रुपए इजाफे से 1,73,610 रुपए हो गया। आलमी सराफा बाजार में सोने का दाम $6 कम होकर $1,936 फी ओंस हो गए। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। गिरानी की मजमूई शरह 32% तजावुज कर गई। एक हफ्ते में 25 अशियाए जरूरिया महंगी हुई। इदारे शुमारियात ने इदाद शुमार जारी कर दिए। महंगाई की लहर अवाम पर ढाने लगी कहर। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 4.45% बढ़ी। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 32.57% हो गई। 25 अशिया की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। LPG का घरेलू सिलेंडर 136 रुपए महंगा हुआ। प्याज के दाम 13 रुपए फी किलो बढ़े। चावल 5 रुपए, टमाटर 2 रुपए 18 पैसे फी किलो महंगे हुए। 20 किलो आटे का थैला 33 रुपए महंगा हुआ। दालों के दाम भी बढ़े। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 6 अशिया की कीमत में कमी और 20 की कीमत में इस्तेहकाम रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 396 पॉइंट्स घट गए हैं। कारोबार के इख्तिताम पर मार्केट 40,450 पॉइंट्स पर बंद हुई। PDM सरबरा मौलाना फजल रहमान की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। इस दौरान मुल्की सियासी सूरत हाल और ज़िमनी इंतखाबात समेत आम इंतखाबात के इनेकाद पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान PDM के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने के फैसले पर भी बातचीत की गई। मजीद इसी हवाले से जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच हमारे साथ मौजूद है। उनसे जी अलमदार बताइएगा। जी बिल्कुल, PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और इस मुलाकात में जहाँ मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। ज़रा बता रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इस हवाले से और आम इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत के PDM की जो जमातें हैं शामिल वो ज़िमनी इंतखाबात साथ लेने की बात करते हैं। जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इस हवाले से भी ज़रा बता रहे हैं कि PDP और PDP की जमातें वो अब। बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज आज दुबई से लाहौर पहुंचेगी। मरियम नवाज के वालिहाना इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग नून ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आज दोपहर 3 बजे मरियम नवाज को दुबई से लाहौर लाने वाली PIA की परवाज 264 लामिकबाल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। मरियम नवाज का इस्तकबाल कैसे करना है, नून लीग ने प्लान फाइनल कर लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानब से लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाली कैंप भी कायम कर दिए गए। नून लीग के सीनियर वफाकी वज़रा एयरपोर्ट पर मरियम नवाज का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और दीगर वफाकी वज़रा लाहौर पहुँच चुके हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से नून लीगी कारकुनान भी एयरपोर्ट पहुँचेंगे। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ, नारोवाल से एहसन इकबाल, ननकाना से बरजीज ताहिर, कसूर से मलक अहमद अपने अपने काफिलों की क़यादत करेंगे। मरियम नवाज को एक बड़े जुलूस की शक्ल में एयरपोर्ट से जाती उमरा रायविंड उनकी रिहाइशगाह पहुँचाया जाएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज एयरपोर्ट से बाहर कारकुनान से खिताब, कारकुनान को नून लीग के कायद नवाज शरीफ के खुसूसी पैगाम से भी आगाह करेंगी। जमान पार्क में PTI के कारकुनों ने कैंप लगा लिए। चेयरमैन की रिहाइशगाह के सामने रश और ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह से मुतासर होने लगा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। मजीद इस हवाले से जानेंगे राना कामरान से। जी राना कामरान बताइएगा।
जी बिल्कुल, हम इस वक्त लाहौर में ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रहायशगाह के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो बड़ी तादाद में जमा है। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ कायदीन हैं उन्होंने यहाँ पे सड़क पे अपने कैंप लगा दिए हैं, जिसमें मुख्तलिफ अपने नाम अपने बैनर अवेजा करके उन्होंने सड़क के बिल्कुल एक साइड पे अपने कैंप लगा दिए, जहाँ पे उनके कारकुन बैठे हुए हैं। वहाँ पे कुर्सियाँ रख दी गई हैं, टेंट लगा दिए गए हैं, और उसके साथ साथ उनके सामने उनके बाइक और दीगर जो गाड़ियाँ वो भी पार्क की गई हैं। अगर हम आपको दिखा सकें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन की रहायशगाह के बाहर आप देखें कि जो ट्रैफिक है ये काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। ये इधर कारकुनों के जमा होने की वजह से, कैंप लगने की वजह से ट्रैफिक की रवानगी में काफ़ी दुश्वारी हो रही है, और लोग काफ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बहुत स्लो चल रही है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिस लाहौर के वार्डन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर क्या समझते हैं कि ये ट्रैफिक यहाँ पे किस तरह के मसाइल हैं आपको? यहाँ पे ट्रैफिक तो काफ़ी स्लो है और काफ़ी यहाँ पे हर्डल्स आ रही हैं। असल में सर जो आवाम है ना, अगर वो पहले क्रॉसिंग वाली जो उसकी आवाम बंद हो जाए और सेकंड में डबल लाइन ना लगाए तो कोई इशू नहीं। ट्रैफिक चल रही है, ट्रैफिक का फ्लो बरकरार है, भैया हमारा मुसलसल चल रहा है, हमें रुकने नहीं दी है ट्रैफिक को अपनी, ट्रैफिक हमारी मुसलसल चल रही है। लेकिन देखें ये बिल्कुल सड़क के किनारे पर ये कैंप लग गए हैं, यहाँ पे पार्किंग हो गई है, तो ये भी तो मसाइल तो पैदा कर रही है। बहुत शुक्रिया राना कामरान आपका अपडेट करने के लिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान का वज़ारत ख़ारजा दौरे का इम्कान। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से CDA को तमाम इंतजामात करने की तहरीरी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद जानेंगे सजाद काज़मी से। जी सजाद बताइएगा। बिल्कुल ऐसे UAE के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान का वज़ारत ख़ारजा दौरे का इम्कान है। इस हवाले से पहले एम्बेसी की तरफ से लेटर लिखा गया था और वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से CDA को तमाम इंतजाम करने की तहरीरी अहकामात जो है वो जारी कर दिए गए हैं। CDA को वज़ीर आज़म हाउस से गार्ड ऑफ ऑनर तक की जगह के इंतजाम की हिदायत की गई है, जबकि दफ्तर ख़ारजा की जानब से भी तहरीरी हिदायत जारी की गई है। CDA को भेजे गए मरासले के मुताबिक UAE का वफ्द जो है 30 जनवरी को दफ्तर ख़ारजा का दौरा करेगा, और इस हवाले से इस्लामाबाद को बाकायदा पैनाफ्लेक्स से सजाया जाए और मेहमानों के लिए गार्ड ऑफ ऑनर के मकाम पर भी इंतजाम करने की हिदायत जारी की गई हैं। दफ्तर ख़ारजा ने भी फ्लाइंग स्क्वाड व्हीकल तैनात करने की हिदायत जो है वो MCI को जारी की हैं। जी बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी।